Hello everyone. Today I am with another topic of business study, that is business finance. This is a very important topic, so please watch the video till end. So let's start. What is business finance? So every business is concerned with the production and distribution of goods and services. So for a smooth functioning of various activities, business requires money, as a business cannot function unless adequate funds are available with it. Hence finance is the lifeblood of any business. So business needs some finance to rन देयर बिजनेस. सो इसी को हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं. एंड बेसिकली द टर्म बिजनेस फाइनेंस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज first is business and other is finance. So business means regular transaction in goods and services for making profit, and the word finance itself means money. So business finance is related to the provision of money at a time when it is needed by the business for meeting the overall objectives of the enterprise. So बिजनेस को पैसों की ज़रूरत होती है जिससे कि वो इंटरप्राइज के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कर सकें. So business finance refers to the money which is invested in business, and it involves the purchase and use of funds so that business firms are able to perform their tasks effectively and efficiently. So अगर आपसे कोई पूछे बिजनेस फाइनेंस क्या है, तो बिजनेस फाइनेंस सिंपली मीन्स फाइनेंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस टू रन देयर operations. Okay, so availability of adequate funds is very essential for the smooth functioning of a business, and the initial capital contributed by the entrepreneur may not be sufficient. Sometime it happens. Hence business firm have to look for other sources from where the requirement of for funds can be met. And assessing the financial needs of the business and identifying the various sources of finance is therefore a significant aspect of running a business organization, and this whole concept is involved in business finance. Okay, so business finance में पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं. बिजनेस फाइनेंस में बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमें पैसा कौन कौन से सोर्सेज से चाहिए है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए. ओके, सो व्हाई बिजनेस नीड फाइनेंस? सो बिजनेस नीड फाइनेंस फॉर फिक्स्ड कैपिटल, फॉर वर्किंग कैपिटल, एंड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द operations, and for upgrading the technology, and for the growth and expansion. Okay, so first of all, business need finance for the fixed capital. So बिजनेस को फिक्स्ड एसेट्स खरीदने होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल खरीदनी होती है. तो फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो भी फंड्स लगते हैं उसको हम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं. सो फंड्स which are invested in the business for a longer period of time are referred to as fixed capital. So such funds are usually required for starting the business and to purchase fixed assets like land, building, plant, machinery, furniture, fixtures, etc. So fixed capital requirement में business को funds चाहिए होते हैं purchase करने के लिए fixed assets को, और यहाँ पे वो फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करते हैं जिसके लिए उन्हें फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. सो एज यू नो डैट डिफरेंट बिजनेस फर्म्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एक्सेट्रा. सो सारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग होती है फंड्स को लेकर के. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल एज कम्पेयर टू अ ट्रेडिंग कंसर्न, एंड सिमिलरली लार्ज एंटरप्राइजेज रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू डैट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि बिजनेस को सबसे पहले पैसे चाहिए होते हैं अपने फिक्स्ड कैपिटल को एक्वायर करने के लिए. ओके, नेक्स्ट, बिजनेस नीड फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल टू मीट आउट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. सो वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल मीन्स द फंड्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट डे टू डे ऑपरेशंस. सो जो भी फंड्स आपको डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए चाहिए होते हैं उन्हें हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं.
So funds which are required for day to day operations of the business are known as working capital. For example, the funds invested in stock of material, bills receivable, and for meeting current expenses like salaries, interest, rent, taxes, wages, etc. So different business firms require different amount of working capital, and it is totally depending on various factors. So for example, a business firm selling goods on credit or having a slow sales turnover require more working capital as compared to a business firm selling goods on cash basis or having a high sales turnover. So जब आप अपने बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज को कैश पे सेल करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास कैश रहता है अपनी डे टू डे ऑपरेशंस को मीट आउट करने के लिए. बट जब आप अपने बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज को क्रेडिट पे सेल करते हैं या उधार पे बेचते हैं तो आपके पास डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए पैसे नहीं होते हैं. तो इसीलिए बिजनेस को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. So, as the business grows and expands, the requirement for fixed and working capital increases, and also more funds are required for adopting the latest technology for reducing the cost of production. So, जैसे ही बिजनेस ग्रो करता है, एक्सपेंड करता है, उसकी फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाती है. ओके, अब देख लेते हैं बिजनेस को फाइनेंस और क्यों क्यों किस पर्पज से चाहिए होता है. सो बिजनेस नीड फाइनेंस टू डाइवर्सिफाई देयर ऑपरेशंस एंड टू बिकम अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी. तो बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना होता है, अपनी कंपनी को बढ़ाना होता है, अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करना होता है. इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ITC कंपनी एंड दिस कंपनी इज सेलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज शैम्पूज एंड वेफर्स एक्सेट्रा. सो like Sunsilk, it is a shampoo which is manufactured in ITC company. Okay, and again business need finance for technology upgradation. So business को modern technology को adopt करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है. The use of computers in business is the perfect example of technology upgradation. And most importantly, business need finance for growth and expansion of the enterprise. So finance needed for growth and expansion. Well, higher growth of business enterprise requires higher investment in fixed asset, and moreover large amount of funds are required for meeting current dates or for building inventories for the festive seasons. So I hope आपको क्लियर हो गया है बिजनेस को फाइनेंस क्यों ज़रूरत होता है. So अपनी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी कंपनी को कंपनी के ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए और अपने बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए बिजनेस को पैसों की ज़रूरत होती है. ओके, सो फॉर दिस देयर इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स. तो यहाँ पे वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स को क्लासीफाई किया गया है 3 बेसिस पे. ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, तो पीरियड मतलब टाइम के तौर पे आपके फंड्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है. लॉन्ग टर्म सोर्सेज, मिडिल टर्म और मीडियम टर्म सोर्सेज या शॉर्ट टर्म सोर्सेज. और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे आपके बिजनेस फाइनेंस को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है. एक है ओनर्स फंड और दूसरा है आपका बोरोड फंड्स. एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन के बेसिस पे आपके फंड्स को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स को. ओके, लेट्स सी. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड बेसिस आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज को आपके फंड्स को 3 तरीके से डिवाइड किया है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म बेसिस पे. ओके, सो लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या है? It include those sources which are required by the business firm for a period exceeding 5 years. तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आपके वो सोर्स आते हैं जो कि बिजनेस फर्म को 5 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए होते हैं. ओके, एंड दीज सोर्सेज हैज़ शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, loans usually required for acquisition of fixed assets such as plant, machinery, equipment, furniture etc. So जब आपकी
इंडस्ट्री को या आपके इंटरप्राइज को पैसे चाहिए होते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए या 5 ईयर से ज़्यादा के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज यूज़ करते हैं. ओके, सो अनदर classification on the basis of period is medium term source. So medium term sources में it include those sources which are required for a period of more than a year but less than 5 year. So medium term sources में आपके वो sources आते हैं जो 1 साल के पीरियड से ज़्यादा के लिए होते हैं बट 5 सालों के से कम के लिए होते हैं. और इन sources में एक नाम आता है जैसे कि you are borrowing from commercial banks or you are doing public deposits, you are doing lease financing and you are taking loan from financial institutions. Okay, so another classification on the basis of period is short term sources. So it include those sources which are required by business firm for a period of less than 1 year. तो जब बिजनेस को पैसों की ज़रूरत होती है 1 साल से कम के लिए तो वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज की तरफ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड क्रेडिट, लोन्स फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा. सो बेसिकली दीज सोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग करेंट एसेट्स सच एज अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गए हैं तीनों कि यहाँ पे आपका पीरियड बेसिस पे सोर्सेज जो हैं वो आपके 3 तरीके से डिवाइड हुए हैं: लॉन्ग टर्म सोर्सेज, मीडियम टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज. ओके, so rest another classification on the basis of ownership is done on the basis of owners fund and borrowed fund. तो यहाँ पे ओनरशिप बेसिस पे 2 तरीके से फंड्स को क्लासीफाई किया गया है. पहले है आपका ओनर्स फंड, दूसरा है आपका बोरोड फंड. ओके, सो ओनर्स फंड मीन्स द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइज आर नोन एज ओनर्स फंड. तो जब पैसा आपका इंटरप्राइज का ओनर खुद प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल तो उसको हम ओनर्स फंड बोलते हैं. एंड वन मोर थिंग you should pay attention that the funds of owner fund not only include capital contributed by the owner but also profits which are reinvested in the business also. Okay, another classification is borrowed fund. So the funds raised through loans or borrowings are known as borrowed funds. तो जब भी पैसे आपने लोन से या बोरोइंग से उठाए होते हैं, बिजनेस में लगाए होते हैं, तो उन्हें हम बोरोड फंड्स बोलते हैं. सच एज यू हैव टेकन लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यू हैव टेकन क्रेडिट for trading and you have issued debentures, public deposit, etc. So these are main sources of raising borrowed funds. Okay, our next classification for the sources of fund is on the basis of sources of generation. Sources of generation means आपने ये पैसा कहाँ से लिया है, whether you have taken it from internal source of finance or whether you have taken it from any external source of finance. So इंटरनल फंड्स या इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स में ये कहा जाता है कि द सोर्सेज ऑफ फंड्स विच आर जनरेटेड बाय द बिजनेस इटसेल्फ आर नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स. तो जो पैसा बिजनेस के अंदर ही जनरेट हुआ है उसको हम इंटरनल फंड्स या इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स बोलते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लस इन्वेंट्रीज, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ इंटरनल फंड्स and only limited needs of the business are fulfilled by these sources. Okay, another source on the basis of generation is external source of fund. So external source of fund is that which lie outside an organization. Okay, तो जो पैसा आपने बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन से उठाया होता है उसको हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड बोलते हैं. For example, loans from commercial bank, financial institution, issue of debentures, public deposit, lease financing, trade credit and factoring. So these are some of the examples of external source of funds. So basically what happens when you require large amount of funds, then external sources are very good. Okay, and the funds raised through these sources are costly as compared to funds raised through internal sources. सो आपके जो फंड्स जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हैं तो वो एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके इंटरनल सोर्सेज से. ओके, और समटाइम आपके एक्सटर्नल फंड्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि आपके बिजनेस को इवन अपने कुछ एसेट्स को मॉर्टगेज करना पड़ता है. ओके, सो आई होप नाउ
you have understood what is business finance and why business need finance, and how to classify the finance, or you can say how to classify sources of finance. Okay, so please go through your books, read it from there, and if still you have any query regarding this particular topic, then please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.